Good morning children, 12th science. We are starting new lesson. Unit 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. The lesson is very important and very interesting. Very easy and very interesting. बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, राइट? लाइक हेलो एल्केन पढ़ा, हेलो एरिन पढ़ा. नाउ वी विल सी carbonyl group in which carbon is having double bond with oxygen, right? This is known as carbonyl group. So first example of this group is aldehyde functional group. Aldehyde में कुछ नहीं करना, C double bond O. One side will be bonded with H and another side bond will be with carbon. R means what? Alkyl group, यानी कोई भी कार्बन होगा. Similarly ketone. In ketone R C double bond O R dash. R and R could be same. R and R dash could be different. If the same alkyl groups are there, then we will write R R. If they are different, then we will write R R dash. Then the next is carboxylic acid. Carboxylic acid. Here you see carbonyl group is bonded to oxygen. In this side carbon. RCOOH. Different examples we have seen and we know. Then comes their derivatives, carboxylic acids and their derivatives like esters. If I write beta R C O X, X means chlorine, fluorine, कोई भी हेलोजन लिख दूँ यहाँ, हेलोजन, ठीक है? तो RCOX, this is known as acyl halide. एसाइल, ये डेरिवेटिव्स हैं, एसाइल हैलाइड्स. लाइक तुमने पहले पढ़ा RCOCl, है ना? इसी तरह से Cl क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. सो RCOX. देन नेक्स्ट इज इफ आई राइट चिल्ड्रन RCOOC डबल बॉन्ड O R dash. What it is? It is acid anhydride. Acid anhydride. Look, by naming the name itself we can write any of the formula. Anhydride मतलब क्या हो बेटा? H2O निकाल देना, है ना? H2O निकाल देना. So if I combine two acids, let me combine. If I am writing here like CH3COOH, acetic acid है, प्लस एक और मॉलिक्यूल ले लो CH3COOH, और इसमें से अपन ने एक H2O को हटा दिया, राइट? H2O माइनस कर दिया. सो व्हाट इट विल फॉर्म नाउ? इट विल फॉर्म नाउ CH3, ध्यान से देखना, CO ट्वाइस O, CH3CO ट्वाइस O, because H2O is liberated, H2O is out. So this is known as acetic anhydride. Acetic anhydride. How to write the structure? CH3CO, ये कार्बोनिल वाला O, और ये कि O हमारे पास और है, इसको ऐसे लगा दो, फिर लगा दो C कार्बोनिल वाला O, then CH3, CH3CO twice O. This is the structure of acetic anhydride. Two acetic acids are joined, one H2O molecule is out, and now acetic anhydride. Anhydride मतलब भी होता है minus H2O. H2O निकाल देना, right? Similarly we can write benzoic anhydride. See how? Benzene ring बना दो. This is benzene ring, right? Here C carbonyl carbon, then one oxygen, then again carbonyl carbon, then again make benzene ring. दिख रहा है? C6H5CO twice O. So this is known as benzoic anhydride. Benzoic anhydride. So in this way we can write the derivatives also. This is the structure of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay. Now we will see स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर. ईस्टर क्या होता है बेटा? RCOR. सो कैसे लिखेंगे? RCOOR. R और R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं. दिस इज ईस्टर. ईस्टर. ओके. देन कम्स अमाइड. RCONH2.
This is amide. We will come to know about different examples of these compounds. Where are they found? Aldehyde, ketone and carboxylic acids are widespread in animal kingdom. They add fragrance and flavor to nature. Like vanillin, vanilla ice cream हम सब खाते हैं, vanilla ice cream, vanilla cupcake and all. So उस vanillin का structure कैसा होता है बेटा? This is the structure of, here aldehyde लगा दो, here OCH3 and here OH. You see 3 functional groups are there. Okay. So this is the structure of vanillin. Who will tell its IUPAC name? Look, there are 3 functional groups. So we will start naming. Carbon number 1 यही होगा क्योंकि aldehyde will come first. Okay. So 1, 2, 3 and 4. Okay. So 4 पे हाइड्रोक्सी हो गया. अब ये ऑल नहीं होगा, यू नो ना, जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और जैसा उसका नंबर आता है उसका नाम वैसा होता है, तो अब ये ऑल नहीं लगाएंगे. दिस इज नाउ हाइड्रोक्सी. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 4. जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ. 4 हाइड्रोक्सी. फिर थर्ड पे मेथॉक्सी. OCH3 मीन्स क्या? मेथॉक्सी. सो थर्ड 3 मेथॉक्सी. ठीक है. थर्ड मेथॉक्सी. देन बेंजल डिहाइड. कैसा एल्डिहाइड ये? बेंजल डिहाइड. ठीक. सिमिलरली वी कैन राइट सैलिसाइल्डिहाइड को लिखो. सैलिसाइल्डिहाइड लास्ट चैप्टर में अभी हाल ही पढ़ा है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हियर एक CHO लगा देंगे और एक OH लगा देंगे, तो ये अब यू नो दिस विल बी कार्बन नंबर 1. क्यों? बिकॉज एल्डिहाइड कम्स अहेड ऑफ OH. सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड. यू अंडरस्टैंड? बेंजीन में CHO लगा दिया तो बेंजल डिहाइड है. 2 पे हाइड्रोक्सी है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड. ओके. देन कम्स थर्ड एग्जाम्पल इज गिवन इन अवर बुक, सिनेमाल्डिहाइड. ऐसा बना दो, सिनेमॉन. ठीक है. देन CH डबल बॉन्ड CHCHO. What will be the IUPAC name? You see carefully. इसका क्या नाम हो सकता है? सब बच्चे ध्यान से सोचो. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. क्यों? ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1 होगा. सब इस तरह के बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड में नोमेनक्लेचर इधर से स्टार्ट होता है. समझ में आए? तो 1, 2, 3. सो 3 पे क्या लगा बेटा? फिनाइल लगा है. सो वी विल राइट 3 फिनाइल. और ये कैसा है? प्रोपेन है या प्रोपीन है? डबल बॉन्ड है तो इन है. सो यू सी केयरफुली, इट इज 1, 2, 3 यानी प्रोप. 2 पे इन लगा है, 2 इन. 1L भी लिख सकते हैं या L भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. इफ someone is writing 2 in 1L then also it is right. 2 in L if someone is writing, both are correct. Are you getting? So either you write this or you write 2, 3 phenyl prop 2 in 1L. Both are correct बेटा. ठीक है. दिखिए सबको? समझ में आया कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं? Then comes about their common names and IUPAC name. Mostly they are known by their common name. Like if I write here children CH3CHO, तो कैसे लिखोगे? CHO ऐसा लिख दो, चलेगा? CH3CHO. So IUPAC name will be ethanal AL, है ना? And common name will be acetaldehyde. Mostly they are known by their common names, acetaldehyde. Okay. Then benzene में अगर लगा दे तो it is CHO लगा दो. So benzaldehyde. Similarly, if I write CH3 CHBr CH2 CHO, you see 1, 2, 3 and 4 ऐसे ही होगा ना. बट कॉमन नेम क्या होगा? इस कार्बन को बेटा बोलते हैं अल्फा कार्बन. वाई अल्फा कार्बन? द कार्बन विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन. सो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया. ठीक है. मेरी बात समझ में आई?
फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। देन बीटा कार्बन, ये हमने डिहाइड्रो हेलोजनेशन में भी पढ़ा था, बीटा एलिमिनेशन में। ओके, नाउ हियर इट इज, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, बीटा पे ब्रोमो लगा है, कैन यू सी चिल्ड्रन? सो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराइल, BUTYRYL, ब्यूटाइराइल एल्डिहाइड, ठीक है। सो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराइल एल्डिहाइड, हाउ टू राइट इट? अब इसका कॉमन नेम क्या, IUPAC नेम क्या लिखोगे? फर्स्ट कार्बन पे लगा है CHO, ठीक है ना, तो 1 2 3, सो 3 ब्रोमो, कितने कार्बन है? ब्यूटेनल, सिंपल है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल will be its IUPAC name and this was the common name. Similarly कीटोन में भी सेम वे करेंगे, like here it is ketone, यहाँ लिख दो कीटोन्स, nomenclature is very easy। कीटोन्स में अगर ऐसा लगा है, ये फिनाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, 1 2 3, C डबल बॉन्ड O CH3। अभी लास्ट कल ही हमने पढ़ा था एसीटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटो, कॉमन नेम acetophenone, okay, and what will be IUPAC name? 1 phenyl ethanone, ये इथेनोन हो गए, 2 कार्बन है तो इथेनोन, तो 1 पे फिनाइल लगा तो 1 phenyl ethanone, understood? In this way we can write their name, like if I write here CH3 CO CH3, what will be the name? Common name is acetone, but IUPAC name is propanone. IUPAC name क्या होगा? IUPAC name propanone. Then comes benzophenone. So benzophenone is also given in our book. This is benzene ring. दोनों साइड से बेंजीन लगा दो, CO, then 1 2 3 1 2 3. So this compound is known as benzophenone. और what will be the IUPAC name? डाइफिनाइल मीथेनोन। कितना इंटरेस्टिंग है, मीथेनोन आएगा बेटा, क्यों? बिकॉज एक ही कार्बन है, सो फिनाइल, दो फिनाइल दिख रहा है, डाइफिनाइल मीथेनोन, इंटरेस्टिंग, एक कार्बन है इसलिए मीथेनोन, अंडरस्टूड बेटा? सो नाउ वी विल कम फॉर देयर IUPAC नेम। सो लेट अस कम फॉर IUPAC name, so it is very easy to name these, like ethanol CH3, अभी शायद हमने किया भी था ये, CHIUPAC names, ठीक है? So in IUPAC names, if I write ethanol CH3 CHO, so IUPAC दो कार्बन है, so ethanol, first one. Second one, very interesting names are there, two, CH3 CH2 CH2 CH, here Br, then CH, then here CH3, then CH2, then CHO, इतना बड़ा. Now what will be the name? Count the carbons. 1 2 3 4 5 6 7, यानी हेप्टेन है. हेप्टेन में रूट वर्ड हेप्ट है बट एल लगा है, सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1. ओके, 2, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. 3 4 5 6 7. ओके, सो वी विल राइट दिस इज हेप्टेन एल, दैट इज श्योर, क्योंकि एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है. सो वी विल राइट 1 2 3 4. 4 ब्रोमो, क्यों ब्रोमो पहले लिया, मिथाइल क्यों बाद में लिया? बिकॉज अल्फाबेट में बी पहले आता है. सो 4 ब्रोमो, समझ में आए? 3 मिथाइल हेप्टेनल, इंटरेस्टिंग. देन सिमिलरली अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है 3,
सो दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड. यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया. नाउ व्हाट आई सी इन दिस कंपाउंड इज ओन ग्रुप इज देयर. तो कितने कार्बन एटम बेटा? 1 2 3 4 5. सो दिस इज ए पेंटेनोन. पेंटेनोन के विच पोजिशन इज हैविंग ग्रुप अटैच टू इट? थर्ड पोजिशन, क्योंकि इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा. सो 4 वी विल नॉट टेक. 1 2 3. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-methyl cyclopentanone. cyclopentanone. ठीक है, इजी है. देन इफ साइक्लिक रिंग है लेकिन हेक्सेन जैसा बना हुआ है तो 4-1. सो इफ इट इज लाइक दिस और यहाँ CHO लगा दिया, दिस इज नॉट बेंजीन. ओके, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड. IUPAC नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड. कार्बल्डिहाइड. ठीक है. सिमिलरली अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए हमारे पास, 5th वन. ठीक है. एंड here we write CO, CH2, CH3. So I said you nomenclature will start from this side. So 1 2 3 यानी प्रोपेनोन तो है, लेकिन प्रोपेनोन का नंबरिंग किधर से शुरू करोगे बेटा? 1 से इधर 1 होगा क्योंकि ओन ग्रुप इधर है. 2 3. सो यू सी दिस इज प्रोपेनोन इज अटैच टू बेंजीन रिंग. तो जब अटैच हो गया तो ये फिनाइल बन गया, राइट. सो 1 कौन से पोजीशन पे फिनाइल अटैच है? तो 1 फिनाइल. ओके. प्रोपेन 1 ओन या प्रोपेनोन, वो दोनों ही करेक्ट होंगे. प्रोपेन 1 ओन. ठीक है. अब प्रोपेन में ई नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ O है. क्लियर. नेक्स्ट कंपाउंड इज मोर इंटरेस्टिंग. CH3, CO, CH3, CHO. एल्डिहाइड का कार्बन नंबर 1 हो जाएगा. 1 2 3 and 4. ठीक है. नाउ वन मोर CH2 वॉज देयर बेटा. यहाँ CH2 कर दें. CH2 तो ये हो जाएगा. दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5. नाउ दिस द नेम ऑफ द कंपाउंड रूट वर्ड विल बी पेंट, क्योंकि 5 कार्बन हो गए. और बट पेंटेनैल है. कैसा पेंटेनैल है? ओन भी लगा हुआ है. जब ओन और एल दोनों में आए तो एल विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. तो ओन को क्या नाम रखते हैं? ऑक्सो. याद आ गया? ऑक्सो. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 3-ऑक्सो पेंटेनैल. 3-ऑक्सो पेंटेनैल. In this way we can write the name. But when there are more than 2 functional groups, same functional groups, तो क्या करते हैं बेटा? सिर्फ जो मेन बेसिक चेन है उसको ही काउंट करते हैं, तब वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. लाइक इफ आई राइटिंग CH3, CH, CH2 एंड CHO, राइट. और यहाँ भी एक CHO लगा हुआ है 1 2, और यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ भी एक CHO लगा हुआ है. CHO, CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CHO. So if you will count the number of carbon atoms, कितने हो रहे हैं स्ट्रेट चेन में बेटा? 1 2 3 4 5. But as we see that, कितना गंदा लिखा है मैंने. CHO ऐसा लिखो. दिख रहा है सबको? कैन यू ऑल सी? CHO इज देयर. सो इफ यू सी चिल्ड्रन, देयर आर 5 कार्बन एटम्स, but in this case we see that 3 functional groups are same. They are more than 2. Then only the basic carbon atom chain will be counted. Not this functional group carbon atom will not be included in IUPAC name. So what will be the name of the compound? 1 2 3 carbon. So it is propane. Propane पे 1 2 and 3 पोजीशन पे एल्डिहाइड लगाए. सो वी विल राइट द नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई 3 बार यानी ट्राई कार्बल्डिहाइड. कार्बल्डिहाइड. यू अंडरस्टूड? व्हेन देयर आर
more than 2 same functional groups, then the functional group carbon atoms are not considered in IUPAC nomenclature. So the name of the compound is propane 1,2,3 tricarbaldehyde. Now structure of the carbonyl group. Children, अपनी book में table number 12.1 में there are different structures, their common name and IUPAC names are given. So you practice those compounds, common name as well as IUPAC name. Here today I will tell you again the structure of carbonyl group. Structure of carbonyl group. 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि C डबल बॉन्ड O है ना, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ठीक है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, देन 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इट फॉर्म्स 3 sp2 यानी कितने, 3 हो गए ना बेटा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन लिख दो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस ऑर्बिट, p ऑर्बिटल ना, p का है, p ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैपिंग. किससे ओवरलैप कर रहा है, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. यू अंडरस्टूड दिस. तो 3 सिग्मा और 1 पाई बन गया. ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर पहले से हैं. सो कार्बोनिल कार्बन एंड 3 एटम अटैच टू इट लाई इन द सेम प्लेन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन. सो द बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री. यू सी, अपनी बुक में दे भी रखा है, C डबल बॉन्ड O, lone pair of electrons are already there. So what will be there, bond angle is 120, here also 120 degree, 120 degree, and here also 120 degree. This is the carbon is sp2 hybridized. It forms sp2 यानी 3 ऑर्बिटल बने. So 3 hybrid orbitals हैं, so 3 sigma bonds it will form. 4th electron of p orbital which was left and this forms pi bond by overlapping with oxygen. ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल के साथ ये ऑर्बिटल्स नहीं आएगा, ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, 2 नॉन बॉन्डिंग. सो इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल बना वो 120 डिग्री बना. द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. यू नो द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक. कार्बोनिल कार्बन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना बेटा. कार्बोनिल कार्बन इज लेविस एसिड है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक. एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन is nucleophilic, Lewis base. ठीक है, carbonyl compounds have substantial dipole moments and are polar than ether due to the difference in the electronegativity. Understood? Then tomorrow we will come for preparation of aldehyde and ketone and different types of reactions. Meanwhile you practice table number 12.1 and write all the IUPAC names which are given in our book till this chapter, till this page. Okay, thank you.